Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 4, hope you will be fine. Today I am going to upload one video about the first chapter of this new Oxford Modern English for class 4. The name of this book is New Oxford Modern English. Let's start the first chapter. The name of the first chapter is, as you know, Pippi Longstocking. You are seeing chapter number 1 of this book is Pippi Longstocking. Pippi is a girl, and Longstocking means that she is wearing long stocking. She is wearing long stocking means एक लंबा पजामा उसने पहना हुआ है. Now, shortly, the writer is written Pippi Longstocking. The writer declares the name as Pippi Longstocking. So here in this chapter we have 4 characters: Pippi, her monkey, you can see, and 2 little kids. Tommy and Anika. You can see here Tommy and Anika. This is Pippi, her monkey, 4 characters. So the writer has written this chapter in the form of story. The name of the writer is Astrid Lindgren. Astrid Lindgren was a Swedish writer, and she is best known for the children's book series because she wrote many stories for the kids. So at the end of the chapter we will be able to know the meanings of these difficult words in English as well as, and I'll tell you the Urdu meanings of these words. So let's start the chapter. Look at here. When Pippi entered Villa Velicula for the first time. Villa means एक बड़ा सा घर, जैसे अमीरों का घर होता है, बड़ा बंगला जो होता है, बड़ा घर होता है, उसको हम विला कहते हैं. वेलिकुला ये विलेज का नाम है. तो क्या कह रहा है, राइटर कह रही है कि पिपी जब गांव वेलिकुला में एंटर हुई पहली दफ़ा, वहाँ पर क्या है, बंगला है, एक घर है, उसके करीब पहुँची. ठीक है, उसके करीब से गुजरी और वेलिकुला का जो गांव है उसमें पहली दफ़ा दाखिल हुई. ठीक है. It was a lovely summer evening. ये गर्मियों की एक सुहानी शाम थी, खूबसूरत शाम थी. ठीक है. The children next door, Tommy and Anika, were not at home. Tommy और अनीका घर में नहीं थे. The children next door मतलब कि बच्चे जो थे अपने घर में नहीं थे. The children next door means that Pippi is standing in front of that villa and standing in front of that door. So the writer is mentioned that Pippi is standing in front of the door, and door here this sentence means that the door belongs to the villa. The door is there in the villa. The main door of the villa is in front of Pippi, and Pippi is standing in front of the door. And this villa is of Tommy and Anika. So, टॉमी और अनीका अपने घर में मौजूद नहीं थे और पिपी आकर उनके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई. They had gone to visit their mother for a week and they had no idea that anybody had moved into the house next door. वो अपनी दादी जान के पास गए हुए थे सैर करने 1 हफ्ते के लिए, और उनको पता नहीं था और उनके जहन में नहीं था, उनका ये ख्याल नहीं था कि कोई उनके घर के पास आया हुआ है और उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है. उनके इल्म में नहीं था क्योंकि वो घर में नहीं थे. उनको नहीं पता था कि कोई हमारे घर के करीब आया है और हमारे दरवाजे के पास खड़ा है. On the first day after they came home again, they stood by the gate. पहले दिन जब वो आ गए, उनके आने के बाद वो पहले दिन जो है वो आकर अपने गेट के साथ खड़े हो गए. Looking out onto the street, और बाहर जो उनकी गली है, उनके घर के बाहर गली है, उसकी तरफ देखने लगे. They had no idea that
देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर। उनको ये नहीं पता था कि उनके घर के करीब एक खेलने की जगह भी मौजूद है। प्लेमेट एक छोटी सी खेलने की जगह होती है जहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते हैं, ठीक है। दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग, वो वहाँ पर खड़े थे और जहन में सोच रहे थे, और उनके जहन में ये बात आ रही थी कि व्हाट दे शुड डू, कि वो उनको क्या करना चाहिए। एंड वंडरिंग, और सोच रहे थे, जहन में ये ख्याल लेकर आ रहे थे, वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग, क्या कोई ऐसा पुरजोश वाक़या होगा, ऐसा कोई खुशी की बात होगी, वॉज लाइकली टू हैपन, कि वो रुनुमा होगा, कोई ऐसा खुशनुमा, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा पुरजोश वाक़या रुनुमा होगा। और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज व्हेन दे couldn't think of anything to play, या फिर वो पहले बोरिंग दिन जो हम कहते हैं कि यार ये बहुत बोर हो गए हैं और हम जो है ना एक चीज़ को खेलते खेलते बस इससे उकता गए हैं, तो वो ये सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा नया वाक़या पेश आएगा, या फिर वही पुराने दिनों की तरह जो हम बार बार एक चीज़ खेलते हैं वही होगा। अगर वो होगा तो वो दे couldn't think of anything to play, तो फिर वो ये सोचेंगे कि फिर हम आज कुछ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो एक चीज़ को बार बार खेलते खेलते तंग आ चुके थे। मतलब एक दिन क्रिकेट खेलते हैं, रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, खेलते खेलते वो चीज़ को तंग आ गए थे, ठीक है। तो एंड जस्ट देन, और इसी दौरान द गेट ऑफ विला वेलिकुला ओपनड एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और इस तरह उस बड़े से घर का दरवाज़ा खुला और एक लड़की जो है वो बाहर आ गई। उस गांव में जो बड़ा सा घर है, ठीक है, उसका दरवाज़ा खुला और एक लड़की जो है उस घर से बाहर आई। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन, वो बहुत अजीब व गरीब लड़की थी, टॉमी एंड अनिका ने पहले उसे कभी नहीं देखा था। रिमार्केबल, अजीब व गरीब दिखने वाली। शी वॉज मिस पिपी, वो मिस पिपी थी। लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, वो मिस पिपी थी, उसने क्या किया था, लॉन्ग स्टॉकिंग, एक लंबा सा पजामा पहना हुआ था, और वो सुबह की सैर के लिए या सुबह जो हम वॉक करते हैं उसके लिए निकल पड़ी थी, ठीक है। मिस पिपी क्या हुई, बाहर आई तो उन्होंने देखा कि एक लंबी सी लड़की है, उसने लंबा सा पजामा पहना हुआ है, और वो उस घर से बाहर आई क्या करने के लिए, सुबह की सैर करने के लिए। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और इस तरह उन्होंने उसको देख लिया। और इसका आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीका था और ये एक रास्ता था जिस तरह वो नज़र आ रही थी। मतलब पीपी को उन्होंने नहीं देखा और इस तरीके से देख लिया जब वो घर से बाहर निकली और उन्होंने उसको देख लिया। पहले उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने जब कुछ नहीं देखा, इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये है, दिस इज़ द वे शी लुक्ड, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब पीपी बाहर आई तो बच्चों ने क्या किया, उसको जब देखा तो इस तरीके से वो जो है नज़र आ रही थी। किस तरीके से नज़र आ रही थी, उसने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए थे। अभी हम आगे जाकर मेंशन करेंगे कि उसने क्या क्या पहना हुआ है, ठीक है। तो इस जुमले का मतलब ये है कि वो हैरान हो गए कि इस लड़की ने क्या पहना हुआ है, दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और ये कैसे तरीके से नज़र आ रही है। ये जुमला छोटा सा है लेकिन इसमें गौर करेंगे आप तो आपको ये पता लगेगा कि लिखने वाले का मकसद ये है कि जब वो बाहर आई तो इस तरीके से वो उनको दिखने लगी। कैसे तरीके से दिखने लगी, अब वो उसकी फीचर्स जो है वो आगे आप लोगों के लिए बयान करेगा। जैसे हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट, एक गाजर की तरह थे। जिस तरह गाजर होती है ना, उसमें डॉट्स वगैरह होते हैं, और गाजर जो है आपको ऑरेंज कलर में मिलती है, रेड कलर में मिलती है, मुख्तलिफ 2 कलर्स में आपको मिलती है। तो उस तरह के बाल थे गाजर के रंग की तरह, और गाजर की तरह उसमें डॉट्स वगैरह, लाइनें वगैरह बनी हुई थी, और उस तरह उसके बाल थे। was braided in 2 tight braids that stuck straight out, और उन बालों से उसने क्या किया हुआ था, 2 ऐसी लाइनें बनाई हुई थी
दो लाइनों का एक जोड़ा बना हुआ था। ब्रेडेड का मतलब है जोड़ा, जैसे हमारे शूज़ वगैरह होते हैं, दो होते हैं, उनको कहते हैं जोड़ा, ठीक है, मतलब पेयर्स, मतलब दो। ब्रेडेड का मतलब है इन इंग्लिश में पेयर्स, ठीक है, मतलब एक चीज़ होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं जोड़वा, दो जोड़े। तो क्या हुआ, बहुत ही सख्त उसने किए हुए थे, उन अपने बालों को सख्त तरीके से बनाया हुआ था और एक लाइन की शक्ल उसको दी हुई थी, और जो है उसके बाल अपने सर से ऐसे स्ट्रेट हुए थे, नीचे नहीं गिर रहे थे। उसको ऐसे बांध के उसने जो है, देखें यहाँ पर ऐसे यहाँ से बांधा, एक इस तरफ निकाल दिया और एक इस तरफ लाइन निकाल दी, ठीक है। तो ये गाजर की तरह उसने एक जो है कोई तस्मे के साथ कोई धागा वगैरह जो होता है उसके साथ ऐसे बांध के इनको स्ट्रेट किया हुआ था। तो इसने कहा कि 2 पेयर्स, ठीक है, ब्रेडेड, दो जुड़वां तरीके से उसने अपने बालों को ऐसे एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे एक स्ट्रेट लाइनें दो बनाई हुई हैं, ठीक है। ओके, हर नोज़ वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसका जो नाक था, उस नाक की शक्ल जो थी वो एक छोटे से आलू की तरह थी। एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रेकलेस, ठीक है, और जो है उसके नाक के साथ साइड पे लेफ़्ट और राइट में छोटे छोटे दाग थे, काले काले दाग थे और काली काली छाइयाँ थी, ठीक है। फ्रेकलेस, छाइयाँ, फ्रेकलेस का मतलब है आपके मुंह पर छाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, छोटे छोटे जो दाग बन जाते हैं काले काले, तो उनको हम क्या कहते हैं, छाइयाँ। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लुक एट हियर, लेट मी जूम इट, ये देखें छोटे छोटे दाग वगैरह, ये डॉट डॉट वगैरह दिख रहे हैं आपको, इसकी छाइयाँ जो हैं पीपी के मुंह पे लेफ़्ट और राइट पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके पूरे नाक के राइट और लेफ़्ट में नुक्ता-नुमा और छाइयाँ बनी हुई थी, ठीक है, डॉट बने हुए थे। नेक्स्ट देखें, इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज़ वाज अ वेरी वाइड वन, और ये ख्याल करें, और आपने ये देखा होगा, और ये जो है इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि उसके नाक के नीचे वाला जो मुंह का हिस्सा है वो चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। अगर आप ख्याल करें, इट मस्ट बी एडमिटेड, अब आप अभी आप गौर करें, आप क्या करें, गौर करें और क्या करें, यहाँ पर इसके नाक को देखें तो नाक के नीचे वाला जो मुंह है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो लिखने वाले ने ये कहा कि उसके नाक के नीचे जो मुंह है, मुंह का जो कुछ हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ओके, विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और मजबूत सफ़ेद दांत भी उसके साथ ही, जो वाइट जहाँ पे है उसका जो मुंह जैसे चौड़ा है वहाँ पर उसके बहुत ही मजबूत और सफ़ेद दांत हैं, ठीक है। हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल, उसका जो लिबास था वो बहुत ही अनोखा था, ठीक है। पीपी हैड मेड इट हर सेल्फ, पीपी ने ये खुद बनाया था, ठीक है। शी हैड मीन्ट इट टू बी ब्लू, वो क्या चाहती थी कि ये सारा का सारा नीला हो। उसने सारा का सारा ड्रेस जो है वो नीला बनाया था, उस सारे के ड्रेस, वो जो ड्रेस था उसका रंग नीला था, बट वो चाहती थी कि ये सारा का सारा नीला हो, बट देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन उसके पास जो है नीले रंग का कपड़ा कुछ ज़्यादा नहीं था। सो पीपी हैड सीव्ड लिटल रेड पीसेस ऑन इट हेयर एंड देयर, तो पीपी ने क्या किया, उसने कुछ जो है थोड़ा सा सुर्ख कपड़े के कुछ टुकड़े सी लिए और इधर उधर लगा दिए। लुक एट हियर, टुकड़ा यहाँ लगा दिया, टुकड़ा यहाँ लगा दिया, टुकड़ा लगा, हेयर एंड देयर। शी सीव्ड द रेड pieces and she put here and here. Okay, now on her long thin legs
शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, और उसकी लंबी पतली टांगों पर उसने क्या किया, अपनी लंबी पतली टांगों पर एक लंबा सा पजामा पहन लिया। वन ब्राउन, एक नीला, एंड द अदर ब्लैक, और दूसरा काला। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट। उसके पास एक काले जूतों का जोड़ा था और वो उतना ही था जितने के उसके पाँव थे। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, जो कि उसके लंबे लंबे पाँव थे और उसने अपने पाँव के मुताबिक लंबे लंबे शूज़ वगैरह ले लिए। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं फ़ौजियों के जो है शूज़ वगैरह देखते हैं, सोल्जर्स जो हमारे पाकिस्तान आर्मी हो गया, उनके ये टखनों से थोड़े थोड़े ऊपर शूज़ मिलते हैं, तो उनको हम लंबे शूज़ कहते हैं। तो वो दो थे, एक एक पाँव में था और एक दूसरे पाँव में था। तो मैंने आप लोग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द थिंग्स आर टू, but we are calling them as a one thing, but these two things will be in a pair, मतलब जो जोड़े की शक्ल में होंगे। तो you can look here, let me clear it. You can see these shoes, long shoes up to here. Okay, so they are two in number, so we will be called as a pair of shoes. Okay, her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. उसके अब्बा जान ने ये जूते जनूबी अमेरिका से लाए थे पिपी के लिए, ताकि पिपी उनको पहने और उनमें पले बढ़े। ठीक है, उनमें उसकी जो है ग्रोथ हो, जैसे कि उनको इस्तेमाल करे। जब वो पहनेगी, वॉक करेगी तो उसकी सेहत भी अच्छी होगी, वॉक में उसको आसानी भी होगी। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम जॉगिंग के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो हम चप्पलों में तो नहीं जाते ना, कि चप्पलों में जाते हैं, चप्पलों में तो हम नहीं जाते, चप्पलों में हम नहीं जाते, तो हम क्या करते हैं, शूज़ वगैरह पहन लेते हैं। तो इसलिए उसके अब्बा जान ने कहा था कि मैं शूज़ ले आऊँ पिपी के लिए, ताकि वो इनको पहने और उनमें पले बढ़े। शी लव्ड देम एंड शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर्स। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत इनको चाहती है और कोई और चीज़ इनके अलावा पहनना नहीं चाहती। So these were the 3-4 paragraphs. I have translated these 3-4 paragraphs into Urdu. Now, dear students, what's your duty? Now you should supposed to learn, read and understand yourself. Make yourself understandable that what is written in these paragraphs and what the writer is saying in these paragraphs. The writer is introducing Pippi and her dress. So dear students, learn, read and memorize it. Tomorrow I will make another video, inshallah. See you soon. Allah Hafiz.